آج میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غریب عوام کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں۔ شدید گرمیوں میں بھی انڈوں کی قیمت انڈے کی فی پیٹی قیمت 3400 سے بڑھ کر 3900 روپے کی ہو گئی ہے۔ یہ رپورٹ مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی، شدید گرمیوں میں بھی انڈوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ فی درجن انڈے 120 سے بڑھ کر 150 روپے کے ہو گئے۔ انڈے کی فی پیٹی کی قیمت 3400 سے بڑھ کر 3900 ہو گئی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری پریشان دکھائی دیے۔ حمزہ شہباز سے اپیل کرتے ہیں کہ انڈے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ان کو جو ہے نا کم کیا جائے۔ پچھلے دنوں 100 روپے درجن تھے، اب ڈائریکٹ 50 روپے درجن بڑھ گئے ہیں، اور کافی ساری چیزوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مرغی کا گوشت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، ان چیزوں میں کمی کی جائے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا تھا کہ گرمیوں میں انڈوں کا ریٹ 80 سے 100 روپے فی درجن ہوتا ہے، اب 150 روپے پر پہنچ گیا۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی سے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ رمضان میں تقریباً 100 روپے درجن، 120 روپے درجن، 110 روپے درجن تھا، اور جیسے ہی عید آئی یہ ہر دفعہ تھوڑا بڑھاتے تھے، لیکن اس دفعہ کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے آپ مرغی کا گوشت دیکھ لیں، اس کا ریٹ 400-500 روپے گیا ہوا ہے، کوئی نا ملک کا حال نہیں ہے اس ٹائم۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے شہری اور تاجروں نے نئی حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سہیب گرمانی، روہی، ملتان۔ سبزیوں کی قیمتیں ساتویں آسمان پر۔ شہر اولیا میں سبزیاں غریب کی پہنچ سے دور، 10 سے 20 روپے مزید مہنگی کر دی گئیں۔ بھنڈی 60 روپے سے بڑھ کر 80 روپے کلو ہو گئی۔ پیاز اور ٹماٹر 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ کریلا 120، پھول گوبھی 60 سے بڑھ کر 80 روپے ہو گئی۔ رواں کی پھلی 250 روپے فی کلو ہو گئی۔ ٹویوٹا سوزوکی کے بعد ہنڈائی نے بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہنڈائی نے گاڑیوں کی قیمت میں 1,50,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ سوناٹا 2.5 کی قیمت میں 1 لاکھ روپے اضافہ ہوا ہے۔ سوناٹا 2.5 کی قیمت 77,49,000 سے بڑھ کر 78,49,000 روپے ہو گئی ہے۔ ٹویوٹا سوزوکی کے بعد ہنڈائی نے بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ہنڈائی نے گاڑیوں کی قیمت میں 1,50,000 روپے تک اضافہ کر دیا۔ سوناٹا 2.5 کی قیمت میں 1 لاکھ روپے اضافہ ہو گیا۔ سوناٹا 2.5 کی قیمت 77,49,000 سے بڑھ کر 78,49,000 روپے ہوگی۔ بریکنگ دیں بہاول نگر میں محکمہ ہیلتھ میں غضب کرپشن کی عجب کہانی۔ کروڑوں روپے کے بوگس بلوں اور خریداری میں گھپلوں کا معاملہ۔ ڈائریکٹر ہیلتھ لاہور ڈاکٹر اشرف نے پیٹ ایکٹ کے تحت انکوائری مکمل کر لی ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ کی انکوائری کے دوران کرپشن ثابت ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ لاہور ڈویژن نے انکوائری رپورٹ سیکرٹری ہیلتھ کو بھجوا دی ہے۔ انکوائری رپورٹ کے دوران سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ روہی نے ڈائریکٹر ہیلتھ کی انکوائری رپورٹ کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے بوگس بل سامنے آیا ہے۔ انکوائری رپورٹ میں 4 افسران اور اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کرنے کی سجیشن دی گئی ہے۔ سابق ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد نعیم عطا کو نوکری سے فارغ کیا جائے۔ رپورٹ میں ایسا کہنا ہے۔ سابق اکاؤنٹنٹ وسیم سجاد اور عامر عثمان کو بھی نوکری سے برخاست کیا جائے۔ جونیئر کلرک مدثر نور کو بھی نوکری سے برخاست کیا جائے۔ سابق سی او ہیلتھ ڈاکٹر اسپند یار کی 2 انکریمنٹ روکی جائیں۔ انکوائری رپورٹ میں ایسا کہا گیا ہے۔ قاسم علی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قاسم، اتنی بڑی تعداد میں گھپلے ہوئے ہیں، مزید کیا کہا گیا ہے اس انکوائری رپورٹ کے اندر؟ جی بالکل، مزید میں اس میں ایکشن لیا جا رہا ہے، اور سیکرٹری ہیلتھ کی جانب سے باقاعدہ سی او ہیلتھ بہاول نگر کو ایک تحریری لیٹر جو علیحدہ سے بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ یہ جو محکمہ ہیلتھ میں کرپشن کا معاملہ، اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے اس پہ نوٹس لیا تھا، اور اس معاملے کی انکوائری کے لیے سیکرٹری ہیلتھ کو باقاعدہ تحریری طور پر ایک اطلاع دی گئی تھی کہ جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ محکمہ ہیلتھ میں جو خریداری کی گئی ہے، ٹینڈر ہوئے، اس میں مبینہ طور پر کرپشن کی گئی ہے اور بوگس بل جو ہے اس کی ادائیگی بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو جس پر جو ہے وہ سیکرٹری ہیلتھ کی جانب سے ڈائریکٹر ہیلتھ لاہور ڈویژن ڈاکٹر محمد اشرف خان کو جو ہے انکوائری افیسر مقرر کیا گیا تھا، جنہوں نے اپنی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی۔ اور یہ انکوائری رپورٹ جب انہوں نے سیکرٹری ہیلتھ کو بھیجی تو اس میں سنسنی خیز انکشافات سامنے ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے روہی نے جو رپورٹ حاصل کر لی ہے، اس میں جو ہے وہ جو بہاول نگر کے سابق سی او ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار ہے، ان کی 2 سال کی انکریمنٹ اسٹاپ کرنے کو کہا، اور اس کے علاوہ جو سابق ڈی ایچ او ہیلتھ جو کہ اس میں مرکزی کردار ہیں، اس مبینہ طور پر جو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے بوگس بل بتائے جاتے ہیں، جن کی سے انکوائری رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے، اس میں مرکزی ملزم ہے، ان کو جو ہے فوری طور پر نوکری سے برخاست کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 3 دیگر جو جس میں 2 اکاؤنٹنٹ اور 1 جونیئر کلرک جو ہے وہ شامل ہے، انہیں بھی جو ہے وہ نوکری سے فارغ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سہیل مختار جو کہ جونیئر جو کہ کلرک تھے، ان کو ڈویژن بہاولپور سے فوری طور پر دوسرے ڈویژن میں تبدیل کرنے کی
तजवीज़ दी गई है। इसी तरह जो है साबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़फ़र इकबाल भट्टी जो कि बजट एंड अकाउंट ऑफिसर है, इनके खिलाफ भी महकमा फाइनेंस को जो है कहा गया कि वो इस पर जो है वो इंक्वायरी करें। इसी तरह जो हयात ट्रेडर्स जो है उसके खिलाफ भी जो है उनको कहा कि कार्रवाई की जाए और इस जो फर्म है इसको ब्लैक लिस्ट करार दिया जाए। तो इस तरह जो है ये एक रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवाई गई है जिसमें इन तमाम जो करप्शन के खिलाफ मुलव्वस अफराद हैं, मुलाजमिन हैं, इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने की फौरी तौर पर कार्रवाई का तजवीज़ जो है वो दी गई है। आशिक, ये कहिएगा जो साबिक DHO हैं उनसे आपका राबता हो सका, जो मरकजी किरदार हैं नई मता, उनका क्या कहना है? और CO हेल्थ भी इसमें मुलव्विस रहे जिनके इंक्रीमेंट रोकने की बात की गई है, उनसे बातचीत हो सकी? वो क्या कहते हैं? अब भावनगर से तब्दील हो गए और हमारा इनसे कोशिश की थी इनसे किसी तरह राब्ता, क्योंकि अब इनकी पोस्टिंग बहावल नगर में नहीं है, दूसरे शहरों में ये तैनात हो चुके हैं। तो बेहतर आशिक हुसैन कुरैशी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कराए थे। AC यजमान मुजाहिद अब्बास कहते हैं कि चोलिस्तान में तहकीकात के मुताबिक ऐसे हालात नहीं हैं जैसे बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मामला ज्यादा बढ़ाकर पेश किया गया। जो भेड़ें फौत हुई वो भी मकामी अफराद की गफलत से इंतकाल कर गईं। मज़ीद जान लेते हैं महमूद ज़हीर से। महमूद, सच्चाई है क्या सूरत हाल है वो बताइए। जी, बहावलपुर के इलाके चोलिस्तान में भेड़ें मरने के बाद बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई। असल मामला क्या है, इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर बहावलपुर ने तहकीकात या यूँ कहने के मामला को जानने के हवाले से हदायत दी असिस्टेंट कमिश्नर यजमान मुजाहिद अब्बास को। उन्होंने इन मामला को क्या पाया है उनसे जानते हैं। इनका कहना है कि कुछ इस तरह के मामला नहीं है जैसे कि बताया जा रहा। क्या तफसीलात इन्हीं से जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सुबह चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे उस मौके पे गया चोलिस्तान में सालिम सर टोबे पे जहाँ पे भेड़ों वाला वाकया पेश आया है। वहाँ पे जाके मैंने तहकीकात की हैं तो मैं उस बंदे से मिला, धमी वल्द कहलू, जिसकी भेड़ें फौत हुई हैं। तो असल मामला ये सामने आया है कि वो दो लोग थे, एक उसका बहनोई था और एक वो जो भेड़ों का ख्याल करते थे। एक बीमार होने की वजह से वो उनको पानी नहीं पिला सका। वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी, खुराक की अवेलेबिलिटी वहाँ पे थी। एक दिन उसकी भेड़ें थोड़ी सी इफेक्ट हुई हैं तो अगले दिन सुबह सुबह लाइव स्टॉक CDA सारे पहुंचे हैं, वहाँ पे उसकी मेडिसिन दी हैं, लेकिन क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो चुकी थी तो वो दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकी। मैं आज मौके पे जाके मैंने वहाँ पे भेड़ें काउंट की हैं खुद जो मरी हैं, तो मौके के ऊपर 71 भेड़ें थी। और मुझे लगता है कि ये हाइप सोशल मीडिया पे ज़्यादा क्रिएट की गई है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने क्रिएट की है। आप लोग सबसे चोलिस्तान वालों से और बहावलपुर वालों से और सारों से रिक्वेस्ट है कि आप हकाइक को जानें, क्योंकि वहाँ पे ना खुराक की कमी थी, ना पानी की कमी थी, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी थी। ये उस बंदे की गफलत की वजह से ये हुआ। उसकी गफलत के बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पे हम लोग पहुंचे और उनकी दाद रसी की और उनको अद्वियात। तो अब इतने जो इंतजामात किए जा रहे हैं, बाउजर आ गए हैं, इतने ज़्यादा इंतजामात किए गए हैं, वैक्सीन के भी और वेटरनरी के कैंप लगा दिए गए हैं, इस हवाले से ये रहें या इनकी ज़रूरत नहीं है? आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जो कि लोगों को लगता है एक्चुअली, क्योंकि मैं विजिट करके आया हूं तो ऐसा नहीं है। हमने PDMA से भी 9 बाउजर मंगवा लिए हैं, चोलिस्तान के अपने वर्किंग हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहले भी सप्लाई के 8 पॉइंट्स तो मैं आज रस्ते में देख के आया हूं जो वर्किंग हैं। तो हर टोबे के ऊपर भी हम भिजवा रहे हैं बाउजर। आप ये कहना चाहते हैं कि सूरत हाल ऐसी वैसी कुछ नहीं है जो कि मीडिया या सोशल मीडिया पर दिखाई गई है, बल्कि हालात नॉर्मल? हालात अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। और ये लोग वहाँ, मैंने उनको शिफ्ट करने का भी कहा कि आप रसूल सर आ जाएं, यहाँ हम आपको वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके साथ जो बाकी बैठे थे 1000 रेवड़ में किसी बंदे को नहीं हुआ जो 4 लोगों का है। हालात नॉर्मल हैं। जो हाइप क्रिएट हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर जिम्मेदार शख्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर यजमान जिनका इलाका है चोलिस्तान का, वो आपको इस हवाले से एक्सक्लूसिव बात बता रहे थे कि हालात नॉर्मल हैं, लेकिन हंगामी। महमूद ज़हीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मनसूबा महकमा सेहत की गफलत के बायस ताखीर का शिकार है। 8 साल कबल शुरू होने वाला मनसूबा ताहाल फाल नहीं हो सका। अस्पताल की बिल्डिंग मुकम्मल होने के बावजूद मरीजों के लिए एक कमरा तक फाल नहीं किया जा सका। बिल्डिंग में अस्पताल की बजाय जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटरीट के दफातर कायम कर लिए गए हैं। मजीद देखिए बिलाल न्याज़ी की रिपोर्ट में।
तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सेहत पर अदम तवज्जो या हुकाम की नाअहली। मुल्तान शहर के बासियों के लिए गुज़िश्ता 8 साल से पहले शुरू किए जाने वाला सेहत का सबसे बड़ा मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने का फैसला किया गया, जिसके लिए 1 अरब से ज्यादा फंड भी मुख्तस किए गए। मंसूबा कई बार इल्तवा का शिकार हुआ। कई साल की ताखीर के बाद 2020 में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बिल्डिंग मुकम्मल हुई। कोरोना के बायस अस्पताल को फाल ना किया जा सका। साल 2021 में अस्पताल की बजाय डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बिल्डिंग में जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट के दफातर कायम कर दिए गए। मरीजों के लिए एक कमरा भी फाल नहीं किया जा सका। वर्किंग अभी तक नहीं हुई। हुकूमत पाकिस्तान जनूबी पंजाब का जो पैसा इस हॉस्पिटल पे लगा हुआ है, तो इसको जब तक वर्किंग में नहीं लाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं इसे इमारत बनाने का। तो अगर बनाई है तो इसको जनूबी पंजाब की जो हुक्मरान है मौजूदा, जो नए वज़ीर आला बने हैं, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दौरे हुकूमत में ये बना था हॉस्पिटल, लेकिन अभी तक इस कारामद नहीं हुआ। दूसरी जाने मुल्तान निश्चर अस्पताल, शबाज शरीफ अस्पताल, सिविल अस्पताल में मरीजों के लोड की वजह से हर वक्त रश लगा रहता है। मरीजों और शहरों का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बिल्डिंग को जल्द फाल किया जाए ताकि मरीजों का जल्द इलाज मुमकिन हो सके। निश्चर में तो हम जाते हैं हॉस्पिटल की, मुल्तान में वैसे बहुत ज्यादा कमी है। निश्चर में जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा रश होता है, और प्राइवेट वाले तो वैसे तवज्जो नहीं देते जब तक उनको पैसा न दे। और हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि मेहरबानी करके मुल्तान में हॉस्पिटल ज्यादा बनाए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 200 से ज्यादा बेड्स मरीजों के लिए रखे जाने हैं, मगर ताहाल बिल्डिंग को मरीजों के लिए फाल करने का फैसला नहीं हो सका। कैमरामैन नजीम सागिर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मुल्तान में एक जानिब गर्मी का जोर है तो दूसरी जानिब गैर-एलानी लोड शेडिंग के बायस हॉस्टल में रहने वाले तलबा शदीद परेशानी में मुब्तला है। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं माज बिन शफीक से। जी माज, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब जहां शहर औलिया में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां एक जानिब मुल्तान के कारोबारी हजरात और आम शहरी परेशान है, वहीं दूसरी जानिब दीगर शहरों से पढ़ाई की गर्ज से आए हुए हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। यहाँ पर हमारे साथ हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं यहाँ मुल्तान आया हूँ डेरा गाजी खान से NMD कैट की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे हॉस्टल में बिजली मतलब लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हम यहाँ स्टडी करने के लिए आए हुए हैं और हमें प्रॉपर टाइम चाहिए होता है स्टडी करने का, और यहाँ कई कई घंटे लाइट नहीं अवेलेबल होती, तो लोड शेडिंग की वजह से बहुत मसला होता है, पढ़ाई सही तरीके से हम कर नहीं सकते। आज बिल्कुल यही कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की जानिब से भी कि लोड शेडिंग के बायस वो हालांकि दीगर शहरों से पढ़ाई के लिए आए हैं, मगर लोड शेडिंग के बायस जो है वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे साथ एक और स्टूडेंट भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी, मैं राजनपुर से आया हूँ इंटर टेस्ट की तैयारी करने के लिए। मैंने मुल्तान का बेस्ट से बेस्ट हॉस्टल चूज़ किया था, लेकिन यहाँ भी वही बिजली का मसला आ रहा है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही। हाँ जी बिल्कुल यही कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की जानिब से भी कि जो है वो एक जानिब वो अपने घर बार छोड़ के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हैं, मगर जो है वो माज बिन शफीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में गुज़श्ता 3 माह से डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तैनात नहीं किया जा सका। मुल्तान बिहाड़ी, लोधरा और खानेवाल में काम शदीद मुतासिर। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की सीट खाली होने की वजह से तरक्याती काम ठप हैं। यूनियन काउंसिल के मसाइल भी बढ़ने लगे हैं। लोकल गवर्नमेंट के साइलिन और अमले को शदीद परेशानी का सामना। मुल्तान की आवाम का फौरी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तैनात करने का मुतालबा। मुल्तान में गुज़श्ता 3 माह से डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तैनात नहीं हो सका। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से मुल्तान बिहाड़ी, लोधरा और खानेवाल में काम शदीद मुतासिर हो गया। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की सीट खाली होने की वजह से तरक्याती काम ठप हो चुके। यूनियन काउंसिलों के मसाइल भी बढ़ने लगे हैं। लोकल गवर्नमेंट के मसाइल और अमले को शदीद परेशानी का सामना है। मुल्तान की आवाम का फौरी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तैनात करने का मुतालबा। सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों के दौरान पुलिस की जानिब से कारकुनों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ खानपुर में PTI के MPA मियां शफी मोहम्मद का अपने कारकुनों के हमरा एहतजाज जारी है। तफसीलात हासिल कर लेते हैं आमिर सुहेल से। जी आमिर। हाँ जी बिल्कुल, सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान पुलिस की तरफ से कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, जिसकी मजम्मत करते हुए खानपुर में MPA मियां शफी मोहम्मद की क़यादत में यहाँ पर कारकुनान चेयरमैन यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। MPA मियां शफी मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.5 साल की हमारी गवर्नमेंट ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद में जलसा किया, धरना दिया, लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद किया। बिलावल साहब ने कराची से इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया।
मरियम बीबी ने जलसे किए, हमारी गवर्नमेंट ने कभी रेजिस्टेंस नहीं दी, कोई रुकावट नहीं डाली। अब हमारी गवर्नमेंट जाती गई है, इनकी गवर्नमेंट आई है, इनको क्या परेशानी है कि इमरान खान साहब के जलसों में ये रुकावट डाल रहे हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए हैं कि कोई एक लीडर इनका पूरे पाकिस्तान में जलसे करके दिखाए। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे किया है, मीनार पाकिस्तान पे किया है, पेशावर में किया है, मुख्तलिफ शहरों में हम कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज है कि हम पुरअमन जलसे करें, उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए और हमारा मकसद जो है वो जल्दी इलेक्शन है। जी, जैसे कि मियां शफी मोहम्मद ने बताया है कि यहाँ ये पुरअमन जो है जलसे कर रहे हैं। जलसे करना पीटीआई का हक है। यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से घिनौना काम किया गया है, इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसी हरकत दोबारा ना की जाए और इनका। आमिर सोहेल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम मीर खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में ज़िले सदर पीटीआई रईस महबूब अहमद, पीटीआई रहनुमा, पार्लियामेंटेरियंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। गुंडागर्दी की गई, उस सिलसिले में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इस चीज़ को पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारा हर जलसा, हमारी हर रैली पुरअमन थी। हम अभी तक पुरअमन हैं। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम एहतजाज सड़कों पे बाहर निकल के करें। इसलिए जो कुछ आज हुआ, जो गुंडागर्दी की गई हुकूमती सतह पे, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम सब मिल के इसका लाएअमल बना रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तक वो हम पहुंचा देंगे। जी जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे साथ खड़े होते हैं। आज हम सियालकोट के वाक़े पे यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए। इन्होंने वहाँ पे जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी की है, वो इनकी समझ आ रही है कि ये हुकूमत बुखला चुकी है, ये गलत फैसले कर रहे हैं। देखें, जैसे रईस साहब ने कहा कि अभी तक हम पुरअमन थे, तो हमें मजबूर ना किया जाए कि हम जो एक दायरे में जा रहे हैं, हमारा हर जलसा, हमारी हर रैली माशाल्लाह बड़ी पुरअमन होती है। तो आज ये इन्होंने पहल की है, तो इस पहल का उन्हें मुआवजा भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। हम सब इकट्ठे हैं, हम प्रोग्राम बना रहे हैं। हम आज़ादी जो हमारा मार्च है उसका भी प्रोग्राम बना रहे हैं, काल का इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि रहीम यार से जो जुलूस जाएगा। इमरान खान का 20 मई को मुल्तान में पावर शो। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन किला कोना कासिम बाग में पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं ने जलसा का में स्टेज की जगह का जायजा लिया है। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में इमरान खान का पावर शो। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन का किला कोना कासिम बाग आमद। पार्टी रहनुमाओं ने जलसा गाह में स्टेज की जगह का जायजा लिया। साबिक सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मल्लिक का कहना है कि मुल्तान जोशो जुनून में है। इमरान खान का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अवाम इमरान खान के साथ है। हर तहरीक का आगाज मुल्तान से हुआ है। यहाँ से दोबारा तहरीक जोर पकड़ेगी। पूरा मुल्तान जोश और जुनून में है और इंशाअल्लाह इमरान खान की आमद का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है, तो मुल्तान की अवाम भी खान के साथ है। एमपीए नदीम कुरैशी का कहना था कि 20 मई को इनकलाब आएगा। जनूबी पंजाब के लोग 20 मई को मुल्तान पहुंचेंगे। अवामी जोशो खरोश से लग रहा है कि किला कोना कासिम बाग छोटा पड़ जाएगा। जलसा बताएगा कि पाकिस्तान किसी की गुलामी कबूल नहीं करेगा। साउथ पंजाब के हवाले से एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। जलसा नहीं है, ये इनकलाब है एक। और मैं समझता हूँ 20 मई को साउथ पंजाब और मुल्तान बिलखुसूस से डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान में अब पॉलिटिक्स किधर जाएगी। एमपीए वसीम खान बादुजाई का कहना था कि किला कोना कासिम बाग में तमाम दोस्त आए हैं। मुल्तान के ही तरीके इंसाफ के साबिक जलसे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इंतजामिया से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट और सिटी की तंजीमें हैं, ये उनके साथ राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह आज ये सारा फाइनल हो जाएगा। बाकी आज यहाँ पे किला कोना कासिम बाग हम सब दोस्त आए हुए हैं इसका जगह को देखने, इसका मुआयना करने। और मुल्तान जो है इस टाइम पुरजुनून है। जबकि इस मौके पर एमपीए जवेद अख्तर अंसारी, साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर, जिलाई सदर तहरीक इंसाफ खालिद जवेद वड़ाई समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। शहर में सूरज आग बरसाने लगा है। गर्मी के बायस सड़कों का तारकोल पिघलने लगा है। झुलसा देने वाली धूप ने हर किसी को परेशान कर दिया। सुहीला तारिक की रिपोर्ट।
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सूरज ने आग लगा रखी है। शहर औलिया इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। कयामत खेज गर्मी की वजह से इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। जरूरत के तहत घरों से बाहर निकलने वाले अफराद हीट वेव से बचने के लिए कोशा नजर आते हैं। मुल्तान में दरख्तों और पौधों की कमी भी शदीद गर्मी की वजह है। गर्मी ज़ाहिर है, गर्मी की वजह से मसला है। बच्चे साथ हैं, मतलब घूमने फिरने के लिए आए हैं, फैमिली साथ है, तो वहाँ की निस्बत हमें गर्मी ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ परिंदे और जानवर भी इस खौफनाक गर्मी से निढाल हो गए हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर मिट्टी के बर्तनों और पार्कों में पानी पीते परिंदे अपनी प्यास का एहसास दिलाते हैं। सूरज की तपिश से बिलबिलाते शहरी भी ठंडा पानी और मशरूबात पीकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा जी, गर्मी की वजह से बहुत प्यास लगी है और गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा शिद्दत से गर्मी लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दिन भर शदीद गर्मी, तपिश और हबस के साथ तवील लोड शेडिंग से शहरियों को सख्त अजियत का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान शहर की गर्मी से सभी वाकिफ हैं और इस शदीद गर्मी की वजह से चरिंद परिंद नढाल हैं। मुल्तान शहर में पड़ने वाली इस शदीद गर्मी की एक बड़ी वजह यहाँ पर दरख्तों की कमी को भी समझा जाता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।